Good morning, children. Today we are going to start a new chapter from economic part, that is economic problems and challenges, poverty and unemployment. Up to now we have covered two chapters in economics. Now we are going to start the new chapter, that is economic problems. Economic problems, which includes lots of problems are there, but here we will have to discuss about the two major problems, that is poverty and unemployment. Indian economy experiences many complex problems which is related to the economy as well as social problems. Lots of problems are there, which includes population growth, the major problem of India, that we are having lots of population in India, right? So this is the main problem. When we try to adjust all the things, then this is the problem which we have to face each and every time. Then second, we are facing the problem that is related to the price rise, right? Every day we can see the prices are changing day by day, and these are the facing problem of Indian economy. Then black money, poverty, unemployment, then starvation. Starvation means कि the people, those who are living below the poverty line, or those people, lots especially 26% of people in India, they are not able to get food twice a day, right? So they are suffering from starvation. Then corruption is also a kind of major problem. Terrorism. These are the problems which we are facing in India, right? So here we will have to discuss about the two major problems, that is poverty and unemployment. First we will discuss about poverty. What is called poverty? A large number of people are deprived to satisfy their basic and essential requirement of the life, such as food, cloth, shelter, education and health services. Right? Large number of people who are deprived to satisfy. They are not able to satisfy their basic needs like food, clothes, shelters, education and health services. If the people are poor, if they are unable to get two meals a day, then definitely they won't have the facilities to get the clothes or to get the shelter. And if their income are very less, then they are not able to go to school to get an education, as well as health services are also not available to the people, those who are poor. So in short we can say the people who are not able to get their basic requirement, then they are called as poor. Such a situation is known as comprehensive poverty, and the people who are living in such a condition in the society, they are called poor. तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी. एंड इस कंडीशन में जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, दे आर कॉल्ड पुअर. ओके, नाउ poverty is a challenge, right? Which people we call the poor. So here three pictures are there which shows the different conditions of the people in India. In the first picture you can see a beggar, right, who is not able to get enough food as well as the basic requirement of a life which is necessary. So he cannot send his children to the school because he has not sufficient income which is necessary to survive. In second, a person who is working in any office with a job, who is able to get the car and he is able to get more money.
right? So his income is sufficient, so he can get the all the things. So here in second one you can see a person is having a good life, means he can fulfill his requirement according to his wish. And in third picture you can see the picture of a businessman who is able to earn maximum money, right, according to his requirements. So three different conditions are shown here. Out of that, second and third you cannot say that they are poor, right? But the first picture in which you can see a beggar and is a child, so they are suffering from malnutrition, as well as they are suffering from not having shelter. They cannot earn enough money to survive a good life, right? So some of the criteria are there which are decided by the government, and according to that we can say a particular person or a particular group of people comes under poverty, right? So basically poverty means scarcity of basic necessities of life. जो हमारी basic requirement है, if we cannot fulfill them, then that is called a poor, right? So here also one more typical two typical cases of poverty has been decided, that in urban case and in rural areas. The requirement of the people in rural area is comparatively less than in urban area, right? Here two persons are given. One in urban case, the name is given Ram Saran, who is a farmer, and he is having 6 members in his family. He lived in a small house and he tried to get the maximum benefit from agriculture, right? So to survive in a big family, that is also a problem which cannot so through the agriculture he might be not earning as much as his requirement. And in second rural area, he is Lakha Singh. He is a farmer. He is living in a small hut. He is hardly able to get meal twice a day, and in his family he is having 8 members. So basically we can say the people who are not able to earn much money, they are poor, right? So some of the criteria through which we can decide the people are living below the poverty line or not, means his basic requirements are fulfilled by his job or by his work or not. For that some of the points has been decided कि person who is not able to get 2 meals a day, right, we can call them poor. जो भी लोग है वो अगर 2 दिन का उसका मील भी ठीक तरीके से नहीं उनको मिल पाता, then we can call them poor. Second, person suffering from problems of unavailability of dwelling place. Dwelling place means residential area या रेसिडेंट्स की जिसको खुद का घर नहीं है, जो हार्डली अपना घर बनाना चाहते हैं पर भी बना नहीं सकते, दे हैव नो प्लेस टू लिव, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर पोवर्टी. देन दे आर फोर्स टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज, राइट. स्लम एरिया स्पेशली जिसे हम कहते हैं झोपड़पट्टीज, राइट. तो जिसको जो खुद का घर नहीं बना सकते, या वो लोग या तो झुग्गी में रहते हैं या झोपड़पट्टी में, वो उनको सर्वाइव करना पड़ता है. देन देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम. एक्सपेक्टेड इनकम जितनी है, सपोज़ कि भाई रूरल एरिया है तो उसके सर्वाइवल के लिए हमें 4000 मिनिमम चाहिए, और अगर अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ के सर्वाइवल के लिए मिनिमम 5000 रेशियो जो गवर्नमेंट ने 2011-12 में डिसाइड किया था. तो इतनी इनकम अगर नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड इनकम, राइट. कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है अगर उतनी भी इनकम नहीं है, देन दे आर कॉल्ड पुअर. और द पीपल हु आर पुअर दे आर फाउंड जनरली इलिटरेट. वो पढ़े लिखे नहीं होते, बिकॉज दे हैव नॉट इनफ मनी टू गो टू स्कूल एंड टू गेट एजुकेशन, राइट. सो दे रिमेन illiterate, and very often they suffered from various diseases like lack of nutritious food. अगर इसको हार्डली 2
2 बार जिसको खाना हार्डली मिलता है या नहीं रहा है, उसे हम न्यूट्रियस फूड की बात तो कर ही नहीं सकते उसमें, राइट। सो अगर उनका फूड अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड अगर उसको नहीं मिलता, देन दे आर सफरिंग विथ वेरियस डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस हो जाते हैं। और स्पेशली स्लम एरियाज यू माइट हैव सीन कि वहाँ पे तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है और एपिडेमिक्स की इफेक्ट जल्दी होती है। सो ऑलवेज दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस, एंड चिल्ड्रन who have taken up the responsibility for looking after their family at the age when they are supposed to study, right। जब उनकी पढ़ने की उम्र होती है तभी से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा भाई बहन हो, फैमिली बड़ा हो और इनकम कंपैरेटिवली लेस हो, तो दे आर फोर्स टू गो टू वर्क समवेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने की बजाय उन लोगों को पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है। सो दे कैन नॉट गेट एजुकेशन, एंड डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू मेल न्यूट्रिशंस। और न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से, इनफ फूड ना मिलने की वजह से यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा फाउंड होता है। देन some of the efforts are made by the government to improve their living standard, the people those who are living below the poverty line। बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं और कर रही है। उसमें सबसे पहला है अंत्योदय फैमिली, राइट। अंत्योदय फैमिली फैसिलिटीज मीन्स द पीपल हु आर लिविंग below the poverty line, they are given food, right। जो स्पेशली फेयर शॉप्स होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं राशन शॉप, राइट, जो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनको लो प्राइस में चीज़ें दी जाती है। एंड स्पेशली दोज हु आर हैविंग BPL कार्ड, जैसे हमारे पास APL कार्ड होता है, राशन कार्ड, राइट। उसी तरह से जो पुअर होते हैं उनके पास BPL का रेड कलर का कार्ड होता है। सो दीज पीपल आर गेटिंग 35 kilograms ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। गवर्नमेंट उसको 35 kg फूड ग्रेन्स उनको प्रोवाइड करती है, दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड दिस इज़ डन विथ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीन्स उसे PDS भी कहते हैं। राशन शॉप्स जो होते हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से चलता है और वहाँ पे उनको ये मुहैया किया जाता है। इवन दिस शॉप्स आर कॉल्ड फेयर शॉप्स, राइट। फेयर प्राइस शॉप्स भी उसको कहा जाता है और ये एक PDS का पार्ट है। एंड एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन एक्सेट्रा आर गिवन अंडर दिस सिस्टम। ये इस स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें लोगों को दी जाती है। और दिस कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज प्रोफाउंड बाय द डायरेक्टर ऑफ WHO। WHO ने ये पूरा एक पॉवर्टी रेशियो निकाला है कि भाई पुअर पीपल या जो पीपल हु आर नॉट एबल टू अर्न मनी, सफिशेंट मनी, दे आर कॉल्ड पुअर। तो पुअर के नीचे की जो एक बॉर्डर लाइन बनाया गया है, राइट, उसकी इतनी मिनिमम इनकम हो तो पीपल कैन सर्वाइव, बट उससे भी कम हो देन दे आर काउंटेड एज ए BPL, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर किस हिसाब से किया जाता है, उसके लिए 2 स्टेप्स लिए गए हैं। फर्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और सर्विसेज बाय फैमिली। एक फैमिली अपनी सर्विसेज और कमोडिटीज़ के पीछे कितना एक्सपेंडिचर करता है उसके हिसाब से डिसाइड किया गया है। एंड सेकेंड थिंग इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए फैमिली, राइट, कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उसके हिसाब से उनकी जो भी टोटल इनकम होती है उस इनकम को पर हेड डिवाइड करके देखा जाता है कि भाई मिनिमम इतनी इनकम सर्वाइवल के लिए चाहिए, ये इतनी है कि नहीं। If it is not enough, then that are counted as a BPL or poor people, right। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉवर्टी
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके टाइप्स है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स ऐसी पॉवर्टी कि जिसमें रियल में लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सरवाइव कर सके, राइट। सो दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स रियल में वो लोग पुअर है, दैट आर काउंटेड एज ए एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कि सपोज कि एक पर्सन है ए, उसकी इनकम है 10,000 और उसके फैमिली मेम्बर्स है 2, राइट। एक पर्सन है उसकी इनकम है 40,000 और उसके फैमिली मेम्बर्स है 3। एक पर्सन है उसकी इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज़ है और उसके फैमिली मेम्बर्स है 5। सो इफ़ यू विल डिवाइड, इफ़ यू सी दिस कंडीशन कि एक पर्सन है तो उसकी इनकम 10,000 है, राइट। तो और उसके फैमिली में 2 ही पर्सन है, तो इफ़ यू डिवाइड दिस इनकम देन इट इज़ 5,000 पर हेड, राइट। उसी तरह के से बी ग्रुप में देखोगे तो उसकी 40,000 इनकम है और सी ग्रुप में देखो तो उसकी 1 लाख इनकम है, तो इनको कंपेयर किया जाता है, राइट। दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। सपोज कि किसी की इनकम 20,000 है, उसके फैमिली मेम्बर्स कम है, देन दे कैन, दैट विल बी इनफ फॉर दैट फैमिली। और दूसरा फैमिली है कि जिसकी इनकम 40,000 है और उसके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, तो दैट विल काउंट, इफ यू विल डिवाइड दैट इनकम ऑल्सो देन दैट इज इक्विवेलेंट, राइट। तो इस कंडीशन को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब कि ये पुअर नहीं है पर अपनी कंपैरिजन दूसरे से करते हैं तो उनको खुद को पुअर लगते हैं, राइट। जैसे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे पास में जो है उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है और हमारी इनकम उनके कंपेयर में कम है, तो हम क्या कहते हैं कि हम इसके मुकाबले में गरीब है, पुअर है, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पुअर्टी। सो एब्सोल्यूट पुअर्टी मीन्स कि रियल में दे आर अनेबल टू गेट देयर बेसिक नेसेसिटीज़, राइट, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। और यहाँ पे क्या है कि हाउस होल्ड रिसीव्स 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियन इनकम्स, राइट। तो दूसरे की इनकम है उसकी कंपेयर में हमारी इनकम कम है, देन वी कैन काउंट आवर सेल्स एज ए पुअर। सो 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। और नेक्स्ट है कि क्राइटेरिया डिसाइड किया, जैसे मैंने अभी बताया कि जो रूरल एरिया है उसमें 4,080 रुपीज़ पर मंथ उसको डिसाइड किया गया है कि एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ एक व्यक्ति को चाहिए सरवाइव करने के लिए मिनिमम। ये डिसाइड किया गया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बेस पे 2011-12 में कि मिनिमम अगर सरवाइव करना है तो पर हेड 1,000 रुपीज़ चाहिए, राइट। और उसी चीज़ को अगर अर्बन एरिया में है तो उसका रेशियो 4,080 की जगह 5,000 रखा गया, क्योंकि अर्बन एरिया में आपको पता है कि इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर देन ऑल्सो यू हैव टू पास मोर डिस्टेंस, राइट। दूर दूर पे जगहें होती है, वहाँ पे जाने के लिए खर्च होते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो विलेज में इजीली मिल जाती है या कम दामों में मिलती है, और वही चीज़ जब अर्बन एरिया में आती है, सिटीज़ एरिया में आती है, तो वहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा लगते हैं। सो दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन कि मिनिमम 4,080 रूरल में चाहिए और मिनिमम 5,000 अर्बन में ये चाहिए, और अगर इतना नहीं हो पाता देन वी कैन काउंट देम एज ए पुअर, और उससे भी कम अगर कमाते हैं देन दे आर कॉल्ड BPL। और अप्रोक्सीमेटली 29.8% पॉपुलेशन इन इंडिया आर पुअर। ये 2011-12 का फिगर्स है जो आपकी बुक में दिया गया है, राइट। सो नॉर्मली वी कैन काउंट दैट 26% पॉपुलेशन इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। देन 2 टाइप्स के पुअर भी मैंने बताया कि रूरल पुअर है, तो रूरल पुअर में किसे पुअर कहा जाता है? रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, और अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उसमें किसको पुअर में काउंट किया जाता है? तो जनरली लैंडलेस लेबरर्स, फार्म लेबरर्स, आर्टिशंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़,
marginal farmers, beggars, forced laborers, inhabitants of forest and mountain regions, ट्राइबल्स और टेम्पररी क्राफ्टमैन आर कॉल्ड रूरल पुअर। इन लोगों को रूरल पुअर कहा जाता है। जो लैंडलेस फार्मर्स है, फार्मर है पर उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, राइट, दे आर पुअर। फार्म लेबरर्स, जो फार्म में काम करते हैं, दे आर पुअर। फिर आर्टिशियंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, सो जो हैंड वीविंग का और वो सब काम करते हैं उसे भी पुअर का है, बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा बेगर्स, राइट, जो मांगने वाले हैं। देन फोर्स्ड लेबर, जिनको फोर्सफुली वर्क करवाया जाता है वो, और स्पेशली जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स एरिया में रहते हैं, जिनकी कम्प्लीटली इनकम बेस्ड होती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूरल पुअर। दे आर लिविंग इन रूरल एरिया, सो दैट इज कॉल्ड ए रूरल पुअर। और अर्बन पुअर में किसको इंक्लूड किया गया है कि टेम्पररी लेबर्स और लेबर्स ऑन डेली वेजेस। टेम्पररी लेबर्स मतलब जो लेबर वर्क करते हैं, उनको परमानेंट उनका जॉब नहीं है, उनके पास कोई परमानेंट काम नहीं है उसे। दूसरा, लेबर्स ऑन डेली वेजेस, जो रोजमदारी पे काम करते हैं, राइट, कि रोज़ मिला तो ठीक है, कई बार उनको रोज़ नहीं भी मिलता, तो डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर। देन डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर मीन्स जो हमारे घर में काम करने वाले होते हैं ना, काम वाली बाई, आया, उन सबको भी दे आर काउंटेड एज ए पुअर। रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल्स और इन होटल्स और इन ढाबास, जो ढाबास, होटल, टी स्टॉल में जो काम करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर। देन वर्किंग इन गैरेजेस, गैरेज में जो काम करते हैं वो पुअर कहलाते हैं। देन बेगर्स, और हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाइड देयर मिनिमम एंड बेसिक नेसेसिटी, उसके अलावा जो भी लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड पुअर, राइट, एंड दे आर कंसिडर्ड एज टू बी द अर्बन पुअर। और ये सारे अर्बन पॉवर्टी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द poverty, what is called poor, then people, what are the criteria of people living below poverty line, then the types of poverty, and the topic which gives an idea or considers the things which is included in poverty in India according to the Planning Commission, according to the WHO, and the types of poor, urban poor and rural poor. Okay, in next video we will discuss about the reason of poverty and strategy to eradicate poverty in India.